Good morning, dear students. This is English class. Today I will teach you chapter number 8. The poem "O Captain, My Captain." Before explain the poem, I will tell you about the background of the poem. The one who is called "O Captain, My Captain" in the poem was Abraham Lincoln, the 16th President of America. Lincoln was very famous person. There were many major changes during his tenure. Among them, there were two main changes which were very important. Slave system came to an end because people who were black or those who were also white could be bought and sold during his tenure. This was on a very large scale, and people used to buy slaves as property and use them as property. He was not treated with humanity. This was a matter of great displeasure to US President Abraham Lincoln. He said that it should not happen that human beings are all equal. For this, they ended this slavery system. But when he ended slavery, many people did not like it. They felt that their right was being taken away from them. They thought that they could do this because they were better than others, meaning the sentiment of those rich was not good towards the poor. But Lincoln said that we oppose it. In this way, it is split into two groups. One group was the one who supported the slavery system. The other was the one who was of Abraham Lincoln's thinking, in which he said that we are all human and we should have equal rights, and we should respect everyone has the right to live with dignity. Due to this, two factions were formed there, and the battles started between those factions which are known as Civil War in America. This was the Civil War in which
Abraham Lincoln got victory in the group, but one of the people who did not like his policies shot him and his life ended. इस तरह से अमेरिका में 2 ग्रुप्स में निग्रोज एंड अदर्स 2 ग्रुप थे, उसमें डिवाइड था और कुछ जो अदर ग्रुप के लोग थे, पीपल थे, वो अपने आप को अच्छा मानते थे और दूसरे ग्रुप को डाउन मानते थे और वो उनसे डिफरेंस रखते थे। वो अब्राहम लिंकन को पसंद नहीं था और उन्होंने इसका विरोध किया और उस पर जीत हासिल की। इससे जो अदर ग्रुप के, उनके अपोजिशन ग्रुप के पर्सन थे, लोग थे, उन्होंने उनका विरोध किया और लास्ट में जब सेकेंड टाइम वो इलेक्शन में प्रेसिडेंट बनने को थे, इलेक्शन जीत चुके थे, तब उनको जो है गोली मार दी और वो उनका अंत हो गया। तो यहाँ पर इस पोयम में जो कंट्री है उसको जहाज माना गया है, शिप में पानी वाला जहाज जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पर है और कैप्टन अब्राहम लिंकन है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ we will study the poem. Yes, first stanza. O captain, my captain, our fearful trip means travel, yatra. ओ कैप्टन माय कैप्टन, ओ मेरे कप्तान, हमारी जो फियरफुल, डरावनी, खतरनाक, खतरों से भरी हुई यात्रा, ट्रैवल, ट्रिप पूरी हो चुकी है। द शिप हैज weathered every wreck. Ship, जहाज, vessel has weathered means झेल चुका है, सामना कर चुका है, every wreck, हर परेशानी का, हर समस्या का। तो जो हमारा शिप है मीन्स हमारे ग्रुप है, वो हर परेशानी को झेल चुका है, सामना कर चुका है। द प्राइज गिफ्ट एंड शाउट इज वॉन और अब जो मीन्स द प्राइज वी शाउट इज वॉन, अब जो प्राइज है, गिफ्ट है, वो जो हमें मिला है, वो क्या है? जीत का, मीन्स हमने जीत हासिल कर ली है। हमारे जहाज ने, मीन्स हमारा जो जहाज है, शिप है, वो हर यातना, परेशानी को झेल चुका है और हमने जीत हासिल कर ली है। दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द स्टैंजा। नाउ दिस इज द सेकेंड लाइन ऑफ द स्टैंजा। नाउ द थर्ड लाइन ऑफ द स्टैंजा। द पोर्ट इज नियर। पोर्ट मीन्स जहां पर शिप खड़े होते हैं, जैसे मान लीजिए बस है, बस स्टैंड होता है, उसी तरह से शिप जहां पर खड़े होते हैं उस प्लेस को पोर्ट बोलते हैं। पोर्ट मीन्स बंदरगाह। बंदरगाह जहां पर शिप खड़े होते हैं। द पोर्ट इज नियर। पोर्ट नियर है, पास में है। द बेल्स आई हियर। बेल्स, जिन बेल्स को मैं सुनता हूं, बेल्स, घंटियों की आवाज मुझे सुनाई दे रही है। द पीपल ऑल एक्सल्टिंग। एक्सल्टिंग मीन्स
एक्सल्टिंग, डिलाइटिंग मीन्स खुशी महसूस कर रहे हैं। एक्सल्टिंग, सेलिब्रेटिंग यानी खुशी का जश्न मनाने के लिए वो जो है खुश है। सेलिब्रेटिंग, सेलिब्रेटिंग। द पोर्ट इज नियर, पोर्ट पास में है, बंदरगाह पास में है। द बेल्स आई हियर, घंटियों की आवाज मैं जो सुन रहा हूं। द पीपल ऑल एक्सल्टिंग, लोग सभी जो हैं खुश हैं, इंजॉय ले रहे हैं। वाइल फॉलो आइज, द स्टेडी कील, स्टेडी कील, वाइल जबकि जो आंखें हैं मतलब मेरी आंखें, हम जो देख रहे हैं वो कहां देख रहे हैं? द स्टेडी कील मीन्स जहाज में इधर उधर, यहां तक कि बॉटम तक, तली तक, कील तली तक, उस एरिया तक जहां देखना मुश्किल होता है, मीन्स जहाज के हर कोने में। द वेसल ग्रिम एंड डेयरिंग, वेसल इज ग्रिम एंड डेयरिंग। वेसल मीन्स जहाज, ग्रिम सीरियस गंभीर, क्यों? क्योंकि अभी भी वहां पर जो है सीरियसनेस है, ग्रिम है, एंड डेयरिंग और साहस किया गया है। तो ये है, और साहस के साथ हम फिर भी जहाज में देख रहे हैं नीचे ऊपर रूफ पर डेक, डेक बोलते हैं जो वेसल की छत होती है उसको बोलते हैं डेक, DECK, डेक। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है ओ कैप्टन माय कैप्टन, ओ मेरे कप्तान, मेरे कप्तान, कैप्टन। फियरफुल ट्रिप, हमारी जो फियरफुल ट्रिप है, हमारी जो खतरों से भरी हुई यात्रा है वो पूरी हो चुकी है। द शिप हैज वेदर्ड एवरी डे, और शिप जो है वो हर यातना को, हर दुख को, हर प्रॉब्लम्स को फेस कर चुका है। द प्राइज वी शॉट इज वॉन, अब तो समय है कि जो प्राइज हमने जीता है, हम मीन्स हम जीत चुके हैं, हमने जो दूसरा ग्रुप है उसको हरा दिया है। द पोर्ट इज नियर, पोर्ट पास में है। द बेल्स आई हियर, बेल्स घंटियों को मैं सुनता हूं, सुन रहा हूं। द पीपल ऑल एक्सल्टिंग, और लोग जो है सभी खुश हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशी का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, मीन्स खुशियां मना रहे हैं। वाइल फॉलो आइज द स्टेडी कील, जबकि मैं, मेरी आंखें जो है मतलब मैं जो हूं जहाज पर देख रहा हूं हर जगह, नीचे ऊपर, बॉटम में भी, कील मीन्स बॉटम, हर जगह। द वेसल ग्रिम, ग्रिम मीन्स सीरियस, सीरियस होकर के, एंड डेयरिंग और साहस से। दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। Now, but oh hurt, 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 यहां पर हर्ट के बाद में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ये दिस इज मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हम दुख या हर्ष, खुशी, हर्षोल्लास के लिए यानी फीलिंग्स के लिए यूज करते हैं। ये हमारे कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। डियर स्टूडेंट्स, हियर बट ओ हर्ट, 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 ए दिल, 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 ऑफ द ब्लीडिंग ड्रॉप ऑफ रेड, वेयर ऑन द डेक माई कैप्टन लाइज फॉलन कोल्ड एंड डेड। ऑफ द ब्लीडिंग ड्रॉप ऑफ रेड मीन्स जो यह जो बहती हुई लाल रक्त की बूंदें, ब्लीडिंग, ब्लड मीन्स ब्लीडिंग, बहती हुई रेड लाल रक्त की बूंदें, ड्रॉप, ड्रॉप मीन्स बूंद,
छत। तो इन द थर्ड लाइन वेयर ऑन द डेक, जहां डेक पर, डेक में छत पर, माई कैप्टन लाइज, मेरे कैप्टन पड़े हुए हैं, फॉलन लेटे हुए हैं, कोल्ड एंड डेड, उनका जो बॉडी है उनकी वो कोल्ड हो गई है, ठंडी हो गई है, एंड डेड और मरी हुई, यानी मृत शरीर पड़ा है। मीन्स ओ ये बहती हुई लाल रक्त की बूंदें जहां जहाज के छत पर पड़े हैं मेरे कैप्टन गिरे हुए ठंडे और मृत शरीर के साथ। यस, नाउ नेक्स्ट टाइम, ओ कैप्टन, माई कैप्टन, राइज अप एंड हियर, राइज अप एंड हियर द बेल्स, राइज अप एंड हियर द बेल्स। ओ मेरे कप्तान, उठो और बेल्स को सुनो, बेल्स को सुनो, हियर द बेल्स, बेल्स को सुनो। राइज अप, उठो, फॉर यू द फ्लैग इज फ्लंग, उठो, आपके लिए जो फ्लैग है, ध्वज, फ्लंग, फ्लंग फहरा हुआ है, लहरा रहा है, आपके लिए ध्वज फहरा हुआ है। फॉर यू द बिगुल ट्रेल्स, आपके लिए बिगुल बज रहे हैं, बिगुल, आपके लिए बिगुल बज रहे हैं। बिगुल मीन्स ट्रम्पेट, ट्रम्पेट। बिगुल मीन्स ट्रम्पेट, आपके लिए बिगुल बज रहे हैं। ट्रेल्स शेक, ट्रेल्स शेक, शेक, शेक मीन्स जो कंपन करना है, कंपित करती है। देन राइज अप, उठो, कैप्टन उठो, फॉर यू द फ्लैग इज फ्लंग, आपके लिए ध्वज फहरा हुआ है। फॉर यू द बिगुल ट्रिल्स, और आपके लिए बिगुल बज रहे हैं। इन द नेक्स्ट लाइन, फॉर यू बुके एंड रिबन रीड्स, रिबन, रीड्स, रीड्स मीन्स गार्लैंड्स, रीड्स, गार्लैंड्स, मालाएं, मालाएं, गार्लैंड मीन्स मालाएं। फॉर यू द बुके एंड रिबन रीड्स, आपके लिए गुलदस्ते, बुके गुलदस्ते, और रिबन फीते से बंधी पुष्पांजलि, मतलब फूलों से बंधा हुआ जो बुके होता है, गुलदस्ता होता है, वो फ्लावर्स का होता है, तो वो फूलों से सजा हुआ, फूलों से बंधा हुआ है। फॉर यू द सोर्स ऑफ क्राउडिंग, फॉर यू द सोर्स ऑफ क्राउडिंग, सोर्स मीन्स किनारा, समुद्र का किनारा, और समुद्र के किनारे पर, सी पर जो है, आपके लिए उस किनारे पर खड़ी भीड़ आपके लिए आवाज लगाती है, और ये भीड़ जो है सोर्स पर खड़ी है, वो उनके फेसेस को, उनके खुशनुमा चेहरों को देखते हैं,
दिख रहे हैं वो। मीन्स ओ कैप्टन माई कैप्टन राइज अप, ये कहा जा रहा है उठो मेरे कप्तान उठो, एंड हियर द बेल्स, और बेल्स को सुनो, घंटियों की आवाज को सुनो। राइज अप उठो, फॉर यू द फ्लैग इज फ्लंग, आपके लिए ध्वज फहराया हुआ है। फॉर यू द बिगुल ट्रिल्स, आपके लिए बिगुल बज रहे हैं। फॉर यू बुके एंड रिबन, आपके लिए गुलदस्ते, बुके मीन्स गुलदस्ता बोलते हैं हिंदी में इसको, बुके गुलदस्ते। रिबन फीते, गुलदस्ते और जो रिबन है फीते से बंधी पुष्पांजलि है आपके लिए। और फॉर यू द सोर्स आर क्राउडिंग, सोर्स पर किनारे पर खड़ी भीड़ आपका इंतजार कर रही है। फॉर यू द कॉल, फॉर यू द कॉल, आपको बुला रही है, आपको बुलाते हैं। द स्वेइंग मास, स्वेइंग, स्वेइंग मास, स्वेइंग मास, लहराते हुए। मास, मास मीन्स कलेक्टिव, यानी मीन्स स्वेइंग मास, एक ग्रुप में खड़े हैं वो और आपको कॉल करते हैं, बुलाते हैं। Their eager faces turning, मीन्स ईगर मीन्स उत्सुक, यानी बहुत उतारू, बहुत ही जल्दी मिलने की इच्छा करने वाले वो भीड़, वो लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। यस, ओ कैप्टन, ओ कैप्टन माई फादर मीन्स डियर फादर, ओ कैप्टन डियर फादर दिस आर, तो यहां पर ओ कैप्टन और डियर फादर इट इज सेड, यहां पर फादर उनको कहा गया है। दिस आर्म बीनीथ योर हेड, ये मेरा हाथ आपके नीचे है। इट इज सम ड्रीम दैट ऑन द डेक, इट इज सम ड्रीम, शायद ये ड्रीम है, ये सपना है जो शिप की, जहाज की छत पर हुआ है। यू हैव फॉलन कोल्ड एंड डेड, आप फॉलन, फॉलन मीन्स पड़े हुए हैं, फॉलन पड़े हुए हैं। पड़े हुए हैं, कोल्ड ठंडे, एंड डेड और मृत। आप ठंड मीन्स ठंड और मृत पड़े हुए हैं, ठंडे और मृत पड़े हुए हैं। मीन्स ओ कैप्टन डियर फादर, ओ कप्तान डियर फादर, दिस आर्म बीनीथ योर हेड, ये हाथ आपके नीचे है, आपके सिर के नीचे है। इट इज सम ड्रीम दैट ऑन द डेक, शायद ये ड्रीम है, ये सपना है जो पोत की, जहाज की छत पर हुआ है। आप ठंडे और मृत पड़े हैं। यस, माई कैप्टन डज नॉट आंसर, मेरे कप्तान डज नॉट आंसर मीन्स कोई जवाब नहीं देते हैं। हिज लिप्स आर पेल, पेल मीन्स पीले, लिप्स
पेल मीन्स पीले, पेल मीन्स पीले, स्टिल अब भी मीन्स उनके जो होठ हैं वो पीले पड़ चुके हैं। माई कैप्टन डज नॉट आंसर, मेरे कप्तान कोई आंसर नहीं देते हैं। हिज लिप्स आर पेल एंड स्टिल, उनके जो होठ हैं वो पीले पड़ चुके हैं और वे लेटे हुए हैं। माई फादर डज नॉट फील माई आर्म, मेरे जो फादर हैं वो मेरे बाह को, मेरे हाथ को, मेरे आर्म को महसूस नहीं करते। He has no pulse, no will. Pulse means nerves. nerve, जो हाथों की नसें होती हैं हमारी बॉडी में, वो उसके लिए आया है पल्स। पल्स मीन्स नर्व। नॉर विल, विल मीन्स इच्छा, यानी न ही कोई इच्छा, मीन्स ही हैज नो पल्स नो विल, नहीं उनकी कोई नब्ज, मीन्स उनके कोई नब्ज नहीं है और न ही उनकी कोई इच्छा है। मतलब जो उनकी नब्ज है वो भी वर्क नहीं कर रही हैं, वो भी नहीं धड़क रही हैं, मीन्स वो डेड हो चुके हैं, मर चुके हैं। द शिप इज एनकोर्ड, द शिप इज एनकोर्ड मीन्स मूर, मूर मीन्स छल्ला जिसे कहते हैं। द शिप इज एनकोर्ड सेफ एंड साउंड, और जो शिप है, शिप बिल्कुल सुरक्षित है, सेफ है, सुरक्षित सेफ ली जो है उसमें लंगर डाल दिया गया है। लंगर मीन्स छल्ला जिसे कहते हैं, वो वहां पर उसको लंगर कहा गया है, लंगर डाल दिया गया है, मीन्स इट्स वॉयज क्लोज्ड एंड डन, मीन्स इट्स वॉयज क्लोज्ड एंड डन, उसकी जो वॉयज है, यात्रा है, वो रुक गई है, मीन्स पूरी हो चुकी है, और वो खड़ा कर दिया गया है उसे सेफली। कहाँ? पोर्ट पर, बंदरगाह पर। फ्रॉम फियरफुल ट्रिप द विक्टर शिप कम्स इन विद ऑब्जेक्ट वॉन, और ये जो फियरफुल, डरावनी ट्रिप, ट्रिप मीन्स ट्रेवल, ट्रिप मीन्स ट्रेवल, ट्रेवल, ये ट्रिप मीन्स ट्रेवल, यात्रा, जो उसकी डरावनी, फियरफुल, डर से भरी, खतरों से भरी यात्रा थी। द विक्टर शिप, विक्टर मीन्स विजयी शिप जिसे कहते हैं, जीतने वाला शिप, कम्स आता है, इन विद ऑब्जेक्ट वॉन मीन्स जीत के साथ। इट मीन्स जो ट्रेवल है खतरों से भरी हुई, वो विक्टर शिप उसको जीत चुका है और जीत करके वो आ गया है। मीन्स डरावनी यात्रा से विजेता, विजयी जहाज अपने लक्ष्य के साथ, अपने एम के साथ वो आ चुका है। Here my captain does not answer means मेरे कप्तान आंसर नहीं देते हैं। His lips pale and still, उनके जो होठ हैं वो पीले पड़ चुके हैं। My father does not feel
माई आर, मेरे जो फादर हैं, मेरे कैप्टन, मेरे हाथ को महसूस नहीं करते हैं। ही हैज़ नो पल्स नो विल, और न ही उनकी नसें धड़क रही हैं और न ही उनकी कोई इच्छा है। द शिप इज एंकोर्ड सेफ, जहाज को सेफली पोर्ट पर खड़ा कर दिया गया है और उसमें लंगर डाल दिया गया है। यात्रा पूरी हो चुकी है। फ्रॉम फियरफुल ट्रिप विक्टर शिप कम्स, और जो उस खतरों से भरी हुई यात्रा को विक्टर शिप जीत करके आ गया है। Yes. Next line. Exult, O souls, and ring, O bells. Exult, exult means delight. आनंद, खुशी। एक्सल्ट ओ सोर्स एंड रिंग ओ बेल्स। ओ सोर्स, ओ किनारों, एंड रिंग द बेल्स। एक्सल्ट, एक्सल्ट में डिलाइट यानी खुशियां मनाओ, उल्लास मनाओ। ओ किनारों, खुशियां मनाओ और घंटियों को बजाओ। ओ बेल्स, घंटियां बजाओ। बट आई विद मॉर्नफुल ट्रेड, मॉर्नफुल मेलनकली, मेलनकली उदास, उदास। बट लेकिन मैं शोकपूर्ण, मैं उदास गति के साथ, चाल के साथ जहाज की छत पर चलता हूं। वहां द डेक माई कैप्टन लाइज, जहां छत पर, डेक मीन्स छत, रूफ, डेक, डेक मीन्स रूफ, छत। वॉक द डेक माई कैप्टन लाइज, मैं छत पर हूं जहां मेरे कप्तान, मेरे फादर पड़े हैं। फॉलन कोल्ड एंड डेड, जहां मेरे कप्तान ठंडे और मृत पड़े हैं, मैं वहां पर हूं। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। मैं आपको एक बार और ये एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा। ओ कैप्टन माय कैप्टन, हमारी डरावनी, डर से भरी हुई यात्रा खत्म हो गई है, जहां जहाज ने हर यातना, हर कष्ट का सामना कर लिया है, और जो पुरस्कार और जो हम चाहते थे इनाम, वो हमने जीत लिया है। पोर्ट बंदरगाह निकट है, घंटियां मैं सुन रहा हूं, सभी लोग आनंद ले रहे हैं और आंखें जहाज की तली का अनुसरण कर रही हैं, देख रही हैं इस गंभीर और साहसी शिप को। लेकिन ओ हर्ट हर्ट हर्ट, यह बहती हुई लाल रक्त की बूंदें जहां जहाज के छत पर पड़े हैं मेरे कैप्टन, गिरे हुए ठंडे और मृत शरीर के साथ। वो कैप्टन, माय कैप्टन, उठो और घंटियां सुने,
उठो, आपके लिए ध्वज फहरा हुआ है, आपके लिए बिगुल बज रहा है, आपके लिए गुलदस्ते और फीते से बधी पुष्पांजलि बुके, आपके लिए किनारे पर खड़ी भीड़ आपके लिए आवाज लगाते हैं। ये झूमती भीड़ उनके उत्सुक फेसेस चारों ओर दिखते हैं जो आपके लिए उत्सुक हैं। यहां पर इस लाइन में नेक्स्ट में कैप्टन को फादर भी कहा गया है। यह हाथ आपके सिर के नीचे है और शायद ये सपना है जो शिप की छत पर हुआ है। मीन्स मैं छत के ऊपर हूं, आप ठंडे और मृत पड़े हैं। तो ये कप्तान के लिए वर्ड है। और लास्ट स्टैंजा में वो कह रहा है, मेरे कप्तान कोई जवाब नहीं देते, उनके होठ पीले पड़ चुके हैं और स्थिर हैं, स्थिर हैं। मेरे पिता मेरी बाह को महसूस नहीं करते हैं, उनके कोई नब्ज नहीं है और न ही कोई उनकी इच्छा है, मतलब न ही उनकी पल्स चल रही है और न ही उनकी कोई उठने की इच्छा है। मीन्स मर चुके हैं। जहाज सुरक्षित रूप से सुरक्षित खड़ा कर दिया गया है, उसमें लंगर डाल दिया गया है। इसकी यात्रा पूरी और बंद हो चुकी है। डरावनी यात्रा से विक्टर शिप, विजयी जहाज लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है। ओ किनारू, ओ सोर्स, उल्लास मनाओ, खुशियां मनाओ और घंटियों को बजाओ। लेकिन मैं दुखी हूं, मैं निराश हूं, शोकपूर्ण मन के साथ मैं शिप की डेक पर, छत पर चलता हूं, जहां मेरे कैप्टन ठंडे और मृत पड़े हुए हैं। Students, I hope that you have understood the explanation of the poem. Okay, student, all the best.